जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Can you hear me? ओके, सो कैसे हैं आप सब लोग? We have 43 participants at the moment. So I guess your class is more than 43. So we 49. Okay. अच्छा जी. So topic of today's discussion is intelligence, right? So what makes us intelligent and not so intelligent? So we have to look into the factors which makes us intelligent and make us dumb. Can anybody define what is intelligence, or what do you mean by intelligence? It's a very commonly used word of English. So what does it mean actually? Whenever you say the person is very intelligent, what does it mean? I'm expecting answers from the 49 of you. So like is, I guess, the Urdu meaning of intelligence. What does it actually mean? What do you expect from an intelligent person? Solving any problem, agreed. Ability of remember things for a long time, yes. So good memory. What else? Know every answer. Okay. Easily learn something. Okay, so solving any problem, ability to remember things for a long time, know every answer, easily learning stuff, sensible person. So let's have a look on the definition of intelligence. Intelligence is basically problem solving ability of an individual, right? So it's a layman definition. Whenever somebody asks you what is intelligence, you can just say that it's a problem solving ability. But at the whole, it is the global capacity of an individual to act purposefully, to think rationally, and to deal with the environment effectively. So basically, there are three domains which are present in this particular definition: think rationally in situations, um, acting purposefully, and dealing with the environment effectively. Okay, so there are three main things: sensible and wise, right? Okay, so whether intelligence is one thing or several different abilities. Um, to find out this thing, scientists use a statistical procedure which was called factor analysis. That basically procedure identified clusters of related items on a test, which means that they made tests, and that test was given to the students, and then tests were applied to check their ability. Okay, so one of the scientists long time back, he whose name was Charles Spearman, what he did, he discovered the journal intelligence, or fact G, or factor G. That was called journal intelligence, and he used factor analysis to discover this journal intelligence. According to Charles Spearman, he thought that if a person is good in maths, he must be good in English too, or he must be good in science too. So he predicted that if a person is doing well in one area of a test, he will do well in another. That was just a prediction of him using the factor analysis thing. तो उसका ख्याल था कि जी एक journal intelligence सब लोगों के अंदर होती है, और
अगर एक बंदा जो है वो किसी एक चीज़ में अच्छा है, फॉर एग्जांपल इफ हम आपको एक टेस्ट देते हैं जिसके अंदर मैथ्स के भी क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस हैं और एनालिटिकल क्वेश्चंस भी हैं, साइंस के भी कुछ जर्नल क्वेश्चंस हैं, तो उसका ख्याल था कि जी अगर इफ अ person scores good in maths, that person must be good in English too. ये होगा कि जी उस सब के अंदर एक हमारे अंदर एक जर्नल इंटेलिजेंस है। तो ये बहुत इनिशियल स्टेजेस में जब इंटेलिजेंस के ऊपर बात की गई, रिसर्च की गई, तो उस वक्त ये बात उसने कही। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने इस पे काफ़ी ज़्यादा काम किया और मल्टीपल थेरीज आई उसके बाद, स्पेयरमैन के बाद, और लोगों ने बताया कि जी व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, क्योंकि ये हर जो थेरी होती है उसकी कोई ना कोई क्रिटिक्स भी होते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है ये ठीक नहीं थी, इसके अंदर इस चीज़ में फॉल्ट था, इस चीज़ में फॉल्ट था। तो चार्ल्स स्पेयरमैन के बाद कुछ और लोग आए जिन्होंने और इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस. One was theory of multiple intelligence. Multiple intelligence basically means that there are several types of different intelligences. Okay, so that was a person whose name was Howard Gardner, and he basically disagreed with Spearman's journal intelligence, and he instead came up with the concept of multiple intelligence. So how he discovered this concept of multiple intelligence was he was studying a particular type of people who were called savants. SAVANTS, savants. ठीक है, so he was savants, and savants जो हैं वो कौन लोग होते हैं? Savants are basically a person which has a limited mental ability but is exceptional in one area. So we can say that savants are usually mentally retarded persons. अब जो कितनी level की mental retardation है, it depends on their IQ. ठीक है, तो ये वो लोग थे कि जो वैसे तो mentally retarded थे, they were dependent on others for their everyday life, but they had one exceptional ability. ठीक है, for example किसी का जो है फोटोग्राफिक मेमोरी थी कि वो कोई एक चीज़ देख लेता था, ठीक है, तो उसको वो याद रहती थी और वो इस तरह से एक उसकी एक डिटेल याद रहती थी कि वो उसको एट टाइम्स ड्रॉ भी कर सकता था या वो बता भी सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका आईक्यू कम था। तो उन लोगों को उन्होंने सेवेंट्स का नाम दिया हुआ था। तो जब हावर्ड गार्डनर ने सेवेंट्स को स्टडी किया तो उसने कहा कि हाउ कम व्हाई नॉट जनरल इंटेलिजेंस तो इन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस तो कहती है कि इफ अ पर्सन इज गुड इन वन थिंग ही शुड बी गुड इन अदर थिंग टू, लेकिन सेवेंट्स के ऊपर ऐसा नहीं था। सेवेंट्स के अंदर सिर्फ एक एबिलिटी थी जो कि बहुत एक्सेप्शनल एबिलिटी थी, आउट ऑफ द वर्ल्ड एबिलिटी थी, लेकिन अदरवाइज दे वर ऑफ लो आईक्यू। ये पिक्चर जो आपके सामने आ रही है इस वक्त इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर, दैट इज वन ऑफ द मूवी ऑफ टॉम क्रूज। टॉम क्रूज की बहुत अर्ली 19 लेट 80s एंड अर्ली 90s की मूवी है, रेन मैन के नाम से। ठीक है, और अगर आपको कभी कहीं वो मिल जाए तो ज़रूर देखिएगा। इस मूवी के अंदर ये जो टॉम क्रूज के पीछे जो आपको एक जेंटलमैन नज़र आ रहा है, ही वॉज अ सर्वेंट। तो सेवन का कॉन्सेप्ट जो है आपको मूवीज के अंदर भी नजर आएगा, आप देख सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द मूवीज। ठीक है, सो हावर्ड गार्डनर ने लेट्स गेट बैक टू हावर्ड गार्डनर। तो हावर्ड गार्डनर ने कहा कि नो नो नो, देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। सो पर्सन कैन वन पर्सन कैन बी गुड एट मैथ्स, वन पर्सन कैन बी गुड इन साइंस, वन पर्सन कैन बी गुड इन लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, तो इस तरह से उसने इस तरह की बात की। अब जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थी वो कौन कौन सी थी? So there were eight kind of multiple intelligences. Eight kind of intelligences के बाद की। One was linguistic, that was word smart, logical and mathematical, logic smart, then naturalist, nature smart. You can take a picture of or screenshot of this particular slide, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है और आपकी बुक में नहीं है। Okay, spatial intelligence, which are picture smart, bodily kinesthetic, which are body smart, musical, music smart people, interpersonal, which are people smart, they know how to deal with people, and intrapersonal, which are self smart. So let's have a look at different kinds of intelligence with these different kinds of intelligence can land up into different kinds of professions. For example, if we look into the linguistic intelligence, word स्मार्ट, तो वर्ड स्मार्ट लोग जो हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो किस पर्टिकुलर प्रोफेशन में एक्सेल कर सकते हैं? जी, सो वर्ड स्मार्ट लोग जो हैं, दे नो हाउ टू राइट,
स्पीकर्स ओके, स्पीकर, और इसके अलावा पॉलिटिक्स ओके, मीडिया, जर्नलिज्म, राइट, और उसके अलावा प्रोफेसर्स ओके, राइटर्स, राइटर्स हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई आप ऐड करो इसके अंदर। जर्नलिज्म हो गया, राइटर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, और किस प्रोफेशन में ये लोग एक्सेल कर सकते हैं? ब्लॉगर्स, यस, दैट्स राइट। पोएट्स, ठीक है, पोइट्स भी वर्ड स्मार्ट होते हैं, लिंग्विस्टिक्स उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो हम में से जितने लोग हैं उन सब की एटलीस्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इतनी वर्ड स्मार्ट नहीं हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जिनको पोइट्री करनी आती हो, या फिर दे लाइक टू राइट स्टफ, ठीक है, स्टोरीज लिख सकते हो, ठीक है, या इस किस्म की काम, कॉलम्स लिख सकते हो, ठीक है। आप देखते हैं जो लोग न्यूज़पेपर्स में कॉलम्स लिखते हैं, ऑनलाइन ब्लॉग्स लिखते हैं, ठीक है, तो ये सारे वो लोग हैं कि जिनके जो वर्ड स्मार्ट हैं, ठीक है। मार्केटिंग पर्सन, मार्केटिंग पर्सन, अब यू कैन से, बट मार्केटिंग पर्सन को हम किसी और चीज में भी डाल सकते हैं। सो दीज पीपल आर ऑल वर्ड स्मार्ट, सो हम ये कह सकते हैं कि इनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनकी वो पिक्चर स्मार्ट भी हो या नेचर स्मार्ट भी हो, तो दैट पर्टिकुलर इंटेलिजेंस इज वेरी गुड इन देम, that's why that intelligence helps them to excel in a particular profession. Okay, logical और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंदर हो, वो कौन से प्रोफेशंस में जाएंगे या एक्सेल करेंगे ज्यादा? अकाउंटिंग, अग्रीड, और बिजनेस, यस, व्हाट एल्स? मैथमेटिशियंस, बिल्कुल, और इसके अलावा? और कोई प्रोफेशन जिसके अंदर लॉजिक स्मार्ट और मैथमेटिक्स रिलेटेड लोगों को हेल्प मिल सके? बैंकर्स, अग्रीड, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नेचुरलिस्ट और नेचर स्मार्ट। नेचर स्मार्ट का क्या मतलब है? हु आर क्लोज टू नेचर, हु हैव अ लव फॉर नेचर, ठीक है। तो नेचुरलिस्ट लोग जो हैं उनके वो कौन से प्रोफेशंस में जा सकते हैं ज्यादा? आर्टिस्ट ओके, फोटोग्राफर, ट्रैवलर्स, zoologist, botanist, archaeologist, ठीक है, पोएट्स। लेकिन पोएट के तो लिंग्विस्टिक भी होना चाहिए ना, वर्ड स्मार्ट भी होना चाहिए, ठीक है। सो ये जितनी भी चीजें हैं हम ये कह रहे हैं कि ये जिस इंसान के अंदर ये वाली इंटेलिजेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा इस तरह के प्रोफेशन में एक्सेल करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो जाएगा ही सिर्फ इस प्रोफेशन में, ये तो डिफरेंट सी बात है कि हम कई दफा हमारी इंटरेस्ट किसी और चीज में होता है लेकिन हम चूज अनफॉर्चुनेटली किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं। लेकिन जो आपकी बेसिक जो इंटेलिजेंस जिसके अंदर ज्यादा होती है, अगर आप वो पर्टिकुलर प्रोफेशन चूज कर लें तो आप उसके लिए एक्सेल करते हैं, ठीक है। लोग पिक्चर स्मार्ट और स्पेशल इंटेलिजेंस, इसके बारे में कोई बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी जा सकते हैं, ज्यादा प्रोफेशंस में एक्सेल कर सकते हैं? पिक्चर स्मार्ट और स्पेशल और 3D फिल्म मेकर्स, अग्रीड, और इसके अलावा? फैशन डिजाइनिंग, बिल्कुल सही। पेंटर्स, स्केचर्स, ठीक है, आर्किटेक्चर, कार्टूनिस्ट,
ठीक है, तो ये सारे ऐसे प्रोफेशन है जिनके अंदर अगर ये चले जाएं तो ये एक्सेल करेंगे। अग्रीड। ओके, सो बॉडी स्मार्ट, बॉडीली काइनेस्थेटिक। अभी आसान चल रहा है, अभी कभी शुरू नहीं हुआ। कनेक्शन का इशू होगा इनका। मेरा तो अभी ठीक ही चल रहा है। नहीं, मेरा है डेंटल का। हाँ, मैं डेंटल। Okay, so body smart is sports, yes, athletes, fighters, dancers. ठीक है, so all these people जो होते हैं they use their body parts and they excel in particular fields. Okay, so picture म्यूजिक स्मार्ट में अगर हम आते हैं जिनकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो कौन से लोग हो सकते हैं? म्यूजिक सिंगर्स, यस, सिंगर्स। और इसके अलावा सिंगर्स ही होते हैं या और भी कोई हो सकता है? नाथ खान, ओके। कंपोजर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट्स। ठीक है, लिरिसिस्ट तो हर लिंग्विस्टिक में भी आ जाते हैं। ठीक है, सो म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिक कंपोजर्स, सिंगर्स, ये सारे लोग वो हैं, म्यूजिशियंस। ये सारे वो लोग हैं जो कि म्यूजिक स्मार्ट है। हम में से कितने लोग म्यूजिक स्मार्ट होंगे? मतलब आप में से कितने लोग म्यूजिक स्मार्ट हैं कि जिनको सिंगिंग का शौक है, या अगर उनको हम एक पर्टिकुलर गाना पकड़ा दें, एक लिरिक्स पकड़ा दें, तो वो उसकी ट्यून बना सकते हैं। तो अब सब नहीं कर सकते ये काम। ठीक है, okay, so let's go to the interpersonal intelligence, that is people smart. So people smart means they know how to deal with people, to influence people. So what do you think with those people who are who have those who have interpersonal intelligence, they can excel in which field? Influencers like मार्केटिंग, अग्रीड, वेरी नाइस। मार्केटिंग के अंदर लोग जो होते हैं उनका काम ही ये होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों के व्यूज चेंज करना किसी चीज के बारे में। दे नो हाउ टू डील विद पीपल। और इसके अलावा डीलर्स, अग्रीड, सेल्स पर्सन। और इसके अलावा बैंकर्स, ओके। और एंकर पर्सन, ओके, यस। पॉलिटिशियंस, आपको पता है कि कुछ हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी यही काम करते हैं कि पीपल स्मार्ट होता है, नो हाउ टू डील विद पीपल साइकी। ठीक है, तो वो भी ये काम करते हैं। काउंसलर्स जो हैं, यस, दे आर इंटरपर्सनल, दे हैव लॉट्स ऑफ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एंड फेथ हीलर्स आर उलमाए कराम। अगर आप देखें कि हमारी पर्टिकुलर, स्पेशली हर जगह पर दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे होता है कि जो आपके रिलीजियस लीडर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, और इवन पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे है कि अगर आप देखें कि उलमा जो हैं, लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, बगैर ये जाने कि जी वो कितना अपने दीन के साथ जो है वो फेथफुल हैं या वो ऑनेस्ट हैं, और वो उनको अंधाधुंध एट टाइम्स फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये लोग जो हैं ये पीपल स्मार्ट हैं। इनको पता है कि हमने दूसरों को कैसे उनकी साइक के साथ खेलना है और उनको कैसे एक जगह से उनके बिलीव्स को चेंज करना है। ठीक है, ओके, कमिंग टू द इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, दैट इज सेल्फ स्मार्ट। So self smart जो है, those people who know about themselves, they know where they stand, they know about their own abilities। ठीक है, so अगर आप अलामा इकबाल का जो खुदी का कॉन्सेप्ट है कि खुदी को कर बुलंद, के खुद ही जो अपने आप के बारे में इंसान को जानना है, क्योंकि यूजुअली हम अगर इतनी डीप थिंकिंग करते ही नहीं है, ठीक है, और अपने बारे में सोचते नहीं है या अपने आप को इन डेप्थ अपनी चीज़ों को देखते नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है। ठीक है, और सेल्फ स्मार्ट लोग जो होते हैं, जब उन्हें अपनी पर्टिकुलर एबिलिटीज के बारे में पता चलता है कि आई कैन डू दिस
और आई हैव द एबिलिटी टू एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर फील्ड और आई कैन डू दिस, ठीक है, तो वो फिर उसके ऊपर काम करते हैं। मेजोरिटी ऑफ अस जो है वो वी डोंट नो एक्चुअली व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो ऑब्वियसली किसी वजह से पैदा किया है, और हम सब के अंदर पर्टिकुलर एबिलिटीज अल्लाह ताला ने डाली हैं कि जिसको अगर हम पहले आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद उनको यूज करें अपने आप को हेल्प करने के लिए और अपनी कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए, तो ये एक बड़ा जबरदस्त काम हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट दे आर, व्हाई दे आर हियर, व्हाट इज देयर पर्पस, ठीक है, और व्हाट आर देयर एबिलिटीज, ठीक है। सो हार्वर्ड गार्डनर ने बेसिकली एक मल्टीपल ये जो 8 इंटेलिजेंसेस थी ये उसने दे दी, और उसने कहा कि किसी में ये लिंग्विस्टिक ज्यादा है, लेकिन ये नहीं कहा कि किसी में लिंग्विस्टिक ही है तो उसमें लॉजिकल नहीं है या नेचर नहीं है, ऐसा नहीं था। बट ही सेड कि समवन हैज अ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मोर देन द लॉजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो होती हो सकता है किसी में 2 भी हो सकती हैं, किसी में 3 भी हो सकती हैं, लेकिन एक चीज ज्यादा होती है, और वो ज्यादा जो चीज होती है, इट हेल्प्स द पर्सन to explore his or her abilities and then pursue those professions in which they can excel because of those intelligences, ठीक है। तो ये चीज जो थी, अगर किसी को जबरदस्ती, किसी को मैथ्स पसंद है और किसी को जबरदस्ती आप साइंस के अंदर डाल देंगे, ठीक है, तो वो बंदा मैथ्स में हमेशा ही अच्छा रहेगा, बेशक आप उसको जबरदस्ती साइंस भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसकी एक इनहेरेंट इंटेलिजेंस मैथ्स की है, ठीक है ना। तो वो चीज चलती रहेगी। लाइक एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो ही इज उनका बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग की तरफ उनका माइंड है, और वो इस तरह के मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, बट अनफॉर्चुनेटली ही बिकेम अ डॉक्टर। अब डॉक्टर तो वो बन गए हैं पेरेंट्स के कहने पे या सब कुछ करने पे, लेकिन ये है कि ही कीप्स ऑन डूइंग थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, घर के अंदर चीजों को जोड़ना, बनाना, करना, विदाउट हैविंग ए नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक इनहेरेंट इंटेलिजेंस है, जो आप कह सकते हैं जो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, और स्पेशल इंटेलिजेंस जिसको वो यूज करते रहते हैं, ठीक है। So that was the theory of Howard Gardner, the theory of multiple intelligence. Okay. अब हार्वर्ड गार्डनर ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि हर थ्योरी की कोई ना कोई वो होती है, क्रिटिक्स भी होते हैं, उसकी क्रिटिसिज्म भी होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बाद कुछ अरसे बाद एक और बंदा आया जिसका नाम था स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग ने कहा कि जी ये तो बहुत मुश्किल है इतनी सारी इंटेलिजेंस को याद करना और उनको देखना। सो लेट्स क्लैरिफाई सिंप्लीफाई इनटू 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो उन 8 को ही उसने 3 के अंदर डाल दिया, कैटेगराइज कर दिया। सो व्हाट वर दे? वन वाज एनालिटिकल, अदर वाज क्रिएटिव, एंड द थर्ड वाज प्रैक्टिकल। So analytical intelligence is that is academic, that is all about analytical intelligence, ठीक है। Second was creative. Creative intelligence is creating novel ideas, creating your knowledge to do something new, ठीक है ना। आपके पास नॉलेज हो और आप उस नॉलेज को यूज करना शुरू कर दें किसी नई सिचुएशन के अंदर, तो दैट इज अ क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ठीक है। कोई नई चीज क्रिएट करते हैं। एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीडे टास्क वेयर मल्टीपल एग्जिस्ट। जो आपको एवरीडे लाइफ के अंदर इंटेलिजेंस चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बाय अ सेकेंड हैंड कार, एंड what will you do? You will go on websites, look into the prices of the that particular car, then look for the new car price, and मल्टीपल लोगों से आप बातचीत करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि जी अच्छा मुझे ये वाला मॉडल चाहिए, इस ईयर का होना चाहिए, इसकी कितनी प्राइस है मार्केट में। सो दैट ये आप इसलिए कर रहे हैं ताकि जब आप एक्चुअली कार बाय करने जाएं तो आपको पता हो और अगला बंदा जो आपके साथ फ्रॉड ना करे। सो दैट इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीडे टास्क, जहाँ पे मल्टीपल सोल्यूशन आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टर्नबर्ग ने सिंप्लीफाई कर दिया गार्डनर की 8 इंटेलिजेंसेस को, और इसने कहा जी एनालिटिकल है, क्रिएटिव है, एंड प्रैक्टिकल है। इसको याद करना शायद ज्यादा आसान हो। Okay. Now, do you think brain size and intelligence has a link? कि कुछ लोग जो इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होते हैं तो उनका ब्रेन साइज भी बड़ा होता है या छोटा होता है, कोई लिंक हो सकता है इसका? What do you think? No. Okay. Don't think so. So you think there is no link between the brain size and intelligence. Okay. So if you look into the picture of normal brain and Einstein's brain, there's a very minute increase in the size in the parietal lobe of Einstein's brain.
सो देयर इज अ लिंक बिटवीन द ब्रेन साइज एंड इंटेलिजेंस। अगर आप ये देखें कि ये नॉर्मल ब्रेन है और ये आइंस्टाइन का ब्रेन है, ये पैराइटल लोब है जहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, आप देखें कि उसका साइज बड़ा हुआ है। तो जब एमआरआई स्कैन्स किए जाते हैं तो एक सिग्निफिकेंट कोरिलेशन आपको मिलता है, ठीक है, ब्रेन साइज का विद इंटेलिजेंस स्कोर्स। Okay, brain function and intelligence. So, high performing brains usually use less glucose energy and neurological speed is also a bit quicker. So, जो जिनकी जो बहुत तेजी से प्रोसेसिंग करते हैं इंफॉर्मेशन की और आंसर्स पिकअप करते हैं, ठीक है, उनके ब्रेन्स की एक तो न्यूरोलॉजिकल स्पीड जो है वो काफ़ी क्विक होती है, ठीक है, और दूसरा ये है कि वो ग्लूकोज भी लेस यूज़ कर रहे होते हैं, हाई परफॉर्मिंग ब्रेन्स जो होते हैं, ठीक है। सो ये भी एक इंटेलिजेंस के साथ इसका लिंक है। ओके, सो लेट्स गो टू द इंटेलिजेंस टेस्टिंग। हाउ डू यू टेस्ट द इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस स्कोर्स कैसे टेस्ट करते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? हाउ डू यू टेस्ट इंटेलिजेंस स्कोर्स? आईक्यू लेवल चेक करके। ओके, एंड आईक्यू स्टैंड्स फॉर? जो जल्दी पिक कर लेते हैं चीज। ओके, ठीक है, लेकिन स्टिल आईक्यू स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ओके, और कोई बता सकता है? आईक्यू स्टैंड्स फॉर? IQ stands for intelligence quotient. Yes, intelligence quotient, agreed. So intelligence quotient और IQ टेस्टिंग की ये जो एक कॉन्सेप्ट था, ये कहाँ से आया? एक्चुअली हुआ ये कि फ्रांस के अंदर इनिशियल 19th सेंचुरी में they observed that there were students in the public school, they were a little low of low ability, ठीक है, and they were not being able to cope with the normal public school instructions. थोड़े से वो कहना चाहिए कि एबिलिटी उनकी कम थी और वो अपने पीयर्स से पीछे रह जाते थे। तो उन्होंने इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया और उन्होंने, जब फ्रेंच गवर्नमेंट थी, जब उसने ये देखा कि हमें उन स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा जो है वो एफर्ट करनी पड़ रही है, तो उन्होंने अपने एक दो साइकोलॉजिस्ट थे उनको हायर किया और उनको कहा कि मेक some particular kind of test from which we can identify the intelligence score of a particular student, so that before admitting the intelligence score, before admitting the student to a school, we will check the intelligence score, and then we will identify if this particular student has a low IQ, then he will be admitted to a special school rather than the normal public school, ठीक है। So ये एक उनका concept, basically purpose था intelligence testing का, ठीक है। इसके लिए उन्होंने दो साइकोलॉजिस्ट जो मैंने क्या, अल्फ्रेड बिने एंड थियोडर साइमन, उनको उन्होंने हायर किया और उनको कहा कि जी आप कोई तरीका निकालें कि जैसा हम आइडेंटिफाई कर लें कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं उनको स्पेशल स्कूल में डालना है और कौन से स्टूडेंट्स को नॉर्मल स्कूल में डालना है, ठीक है। और ये दोनों साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने काफ़ी फिगर आउट किया और उन्होंने फिर एक कॉन्सेप्ट ड्राइव किया जिसको उनको नाम दिया मेंटल एज का। So mental age means a person of particular age should know what a person of particular age should know. For example, if we know that a 10-year-old child should know this level of information, ठीक है, तो वो आपने कैलकुलेट की और उससे आप उसकी मेंटल एज जो है वो डिस्कवर करते थे, ठीक है। और उसने कहा कि जी जब हम मेंटल एज डिस्कवर कर लेते हैं तो वो फिर फ्यूचर परफॉर्मेंस जो है वो प्रिडिक्ट कर सकता है। अगर एक बच्चे की आप मेंटल एज उसके एडमिशन से पहले डिस्कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम बता सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चाइल्ड है, ये एक नॉर्मल पब्लिक स्कूल में हम इसको भेजें या ये कि ये थोड़ा सा
डम है, थोड़ा सा कम इसकी इंटेलिजेंस है, तो हम इसको किसी स्पेशल स्कूल में भेजें। ठीक है, तो ये उनका बेसिकली, ताकि उनके रिसोर्सेज जो हैं वो इतने यूज ना हो, तो ये उन्होंने यूज तरीका शुरू किया। अब मेंटल एज को कैसे उन्होंने डिस्कवर किया? मेंटल एज को डिस्कवर करने के लिए उन्होंने कुछ टेस्ट बनाए आईक्यू के, जिसके अंदर मैथ्स के क्वेश्चंस थे, इसी तरह शेब श्वेब श्वेब यार इधर मैम बैठी है, जरा उसके देख के आई। उधर ना, उधर वहां पे मैम बैठी हुई है, जरा देख के, इनकी आवाज नहीं आ रही, मैंने म्यूट भी किया। नहीं आ रही, बोल रहा हूँ नहीं आ रही है, वो देखो वो कह रही है उधर जरा जाएंगे। भाई उनकी आवाज ही नहीं आ रही तो मैं कैसे बात करूँ? वो तो बता रही है ना मुझे कि मेरी आवाज नहीं आ रही, वो पता नहीं मसला है उधर, वो चेक करवा। जी, अब आ रही है आवाज? आ रही ठीक है। एक तो ये कुछ बोलते भी नहीं है ना ज्यादा, प्रॉब्लम ये भी है। ओके, सो इंटेलिजेंस टेस्टिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने देख लिया कि मेंटल एज क्या होती है। मेंटल एज है अ पर्सन, व्हाट अ पर्सन ऑफ पर्टिकुलर एज शुड नो, तो जो उसको पता होना चाहिए हमारे ख्याल से, ठीक है, वो उसकी मेंटल एज होती है। ठीक है, और मेंटल एज हम कैसे निकालते हैं कि हम एक टेस्ट बना के उस स्टूडेंट को वो टेस्ट देते हैं
If 50% of those students are able to do that test, then that means that their mental age is that. For example, if a 20-year-old is given a test of 25-year-old people, okay, and they are able to do that test of that 25-year-old people, that are meant for 25-year-old people, that means that their mental age is 25. Okay. सो अब एक हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। आईक्यू का फॉर्मूला क्या है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। सो मेंटल एजेस जो हम पहले से निकालेंगे टेस्ट देके किसी स्टूडेंट को, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? जो उसकी एक्चुअल एज है। लेट्स से इफ यू आर 20-year-old और यू आर 30-year-old, 40-year-old, तो ये आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है और मल्टीप्लाइड बाय 100। So, for example, if your question of an 8-year-old boy who has a mental age of 10, so what is her IQ? एक गर्ल है जिसकी एज 8 है, ठीक है, एंड शी हैज अ मेंटल एज ऑफ 10, तो उसका आईक्यू क्या होगा? जल्दी से मुझे इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करके बताएं। मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। यू मस्ट हैव योर फोन्स विद यू, कैलकुलेटर यूज करें और जल्दी जल्दी से बताएं। एट्टी? रॉन्ग। मेंटल एज इज 10, chronological age is 8. 10 divided by 8 into 100. वन 125। थैंक यू सो मच। तो उसका जो IQ है वो 125 है। अगला क्वेश्चन है, 12-year-old हैज अ मेंटल एज ऑफ 9, व्हाट इज हर IQ? अब इसको कैलकुलेट करें। 12-year-old हैज अ मेंटल एज ऑफ 9, व्हाट इज हर IQ? 12-year-old, 75. Great. Okay, now you need to, in the next, you need to calculate the chronological age. A boy has a mental age of 10 and an IQ of 200. How old is he? तो हमने अब इसकी क्रोनोलॉजिकल एज निकालनी है। आपको मेंटल एज दे दी गई और आईक्यू भी दे दिया गया है। इसकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या होगी? इस बॉय की एक्चुअल एज क्या होगी इसकी, जिसका आईक्यू 200 है और उसकी मेंटल एज 10 है? हरी अब, जल्दी से कैलकुलेट करें। 20? नो। हाउ कम इट्स 20? मैथ्स में लगता है वीक है आप लोग। आपके राइट साइड पे मेंटल एज, दैट्स ग्रेट, 5। तहरीन है, बिल्कुल ठीक है। इस बच्चे की एक्चुअल एज 5 है और उसकी मेंटल एज 10 है और उसका IQ 200 है। ठीक है, ओके। बट दिस फॉर्मूला हैज अ प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू द एडल्ट्स। जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो इस फॉर्मूला के अंदर थोड़े से इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल, if there is a 60-year-old man and he does well as an average 30-year-old, means के 60-year-old की एक्चुअल एज और उसकी मेंटल एज 30 है, ठीक है, तो इसका आईक्यू क्या निकलेगा? 60, 30 divided by 60 into 100। 50, यस। तो इसका आईक्यू 50 निकलेगा और 50 आईक्यू जो है वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कैसा आईक्यू होता है? किसी को आइडिया है कि 50 इज अ गुड आईक्यू? अरे अब जल्दी जल्दी बताएं भाई, व्हाई डू यू टेक सो मच टाइम? It's a normal IQ. Okay, let's have a look if it's normal or not.
एवरेज आईक्यू, अच्छा। ओके, सो अब ये जो आईक्यू का फॉर्मूला था, क्योंकि इसमें हमें प्रॉब्लम आती थी कि क्योंकि 50 इज नॉट अ नॉर्मल आईक्यू, 50 इज मेंटल रिटार्डेशन टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, सो जब हमने ये देखा कि जी ये प्रॉब्लम आ रही है एडल्ट्स के साथ, और वहाँ पे जाके ये आईक्यू गलत हमें देना शुरू कर देता है रेंज आईक्यू की, तो फिर उसके बाद फर्दर और इसके ऊपर काम हुआ, और उन्होंने फिर एक्चुअल स्केल्स निकाले जो अब इन प्रेजेंट डे में यूज हो रहे हैं, जिसमें एक स्केल है वेस्टर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। सो मोस्टली वाइडली यूज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है, और इसके अंदर हम नॉन वर्बल और वर्बल परफॉर्मेंस के अलग अलग टेस्ट होते हैं जो हम यूज करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है इसका आईक्यू किसी भी इंसान का जो कैलकुलेट करते हैं। हम ये फॉर्मूला अब यूज नहीं करते, ठीक है। सो अगर आप ये पर्टिकुलर पिक्चर देखें तो ये सिर्फ एक इसकी एग्जांपल है, जो वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, जो हम एडल्ट्स के लिए भी यूज करते हैं, और जो बच्चों के लिए वेस्लर चाइल्ड इंटेलिजेंस स्केल यूज होता है, ठीक है। तो अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसके अंदर वर्बल एक लिखा हुआ है ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें वर्बल रिलेटेड आपसे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल इन्फॉर्मेशन है, या सिमिलैरिटीज पूछते हैं कि इन व्हाट वे वूल एंड कॉटन आर अलाइक। इस तरह मैथ्स के कुछ सम्स होते हैं, वोकेबलरी के मतलब कुछ पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन के पूछे जाते हैं, डिजिट स्पैन होता है। तो इस तरह की मल्टीपल चीजें हैं जो वो आपसे पूछते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस की बारी आती है। सो परफॉर्मेंस का एक अलग टेस्ट होता है कि या तो आपको पिक्चर कंप्लीशन, एक पिक्चर दी जाती है जिसका कोई पार्ट मिसिंग है, तो वो कहते हैं जी इसको उसके साथ जोड़ दें। पिक्चर अरेंजमेंट दी जाती है, मल्टीपल पिक्चर्स होती हैं और उनको एक स्टोरी के फॉर्म में आपने अरेंज करना होता है। फिर आपको ब्लॉक्स दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इसको एक पर्टिकुलर तरीके से आपने फिट करना है। ऑब्जेक्ट असेंबली होती है, जो कि बच्चों को भी आप देते हैं कई दफ़ा कि वो डिफरेंट एक पिक्चर उन्होंने कंप्लीट करनी होती है, ऑब्जेक्ट से देते हैं, ठीक है। इस तरह से डिजिट सिंबल सब्स्टिट्यूशन है। तो ये मल्टीपल किस्म के टेस्ट होते हैं, जो एक सेट के अंदर 11 सब टेस्ट होते हैं जो दे देते हैं, और इसके थ्रू हम फिर बाद में आईक्यू कैलकुलेट करते हैं किसी भी इंसान का, ठीक है। ओके, साइकोमेट्रिक अप्रोच का मतलब क्या है कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसके अंदर जो आईक्यू के स्कोर्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेल शेप्ड कर्व में, जो आपका पिक्चर नजर आ रही है सामने, ठीक है। सो रिमेंबर ओनली टू थिंग्स, वन इज दैट एवरेज आईक्यू ऑफ द पॉपुलेशन इज 100। अगर आपसे पूछा जाता है कि जी व्हाट इज द एवरेज आईक्यू, एवरेज होता है ना मीन ऑफ समथिंग, ठीक है। तो ऑन एवरेज द पॉपुलेशन आईक्यू इज 100, ठीक है। नाउ अब 100 एक एवरेज है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन का आईक्यू स्कैटर्ड होगा, ठीक है ना। कुछ का 100 से ऊपर होगा, कुछ का 100 से नीचे होगा। ओके, सो दूसरी चीज जो हमने ये याद रखनी है कि इफ द एवरेज IQ is 100, that means that 95% of the population has an IQ between 70 to 130. 95% of the population जो है उसका IQ रेंज करता है 70 से 130 के दरमियान, एंड दिस इज अ नॉर्मल आईक्यू, ठीक है। 70 टू 130 इज अ नॉर्मल आईक्यू, और जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है उसका 95% जो है वो इसके दरमियान लाई करता है, ठीक है। हम सारे जो हैं, जो कि हम नॉर्मल पॉपुलेशन में हैं, तो हमारा आईक्यू 70 टू 130 के दरमियान लाई करता है। अब 95 को तो हमने केटर कर लिया, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 5% ऑफ द पॉपुलेशन। सो रेस्ट ऑफ द 5% ऑफ द पॉपुलेशन में क्या है कि 5 को हम दो हाफ्स में डिवाइड करते हैं, 2.5 एंड 2.5। 2.5 इज लेस देन 70 एंड 2.5 इज मोर देन 130। सो लेस देन 170 जो है वो है कि जो जिनको हम मेंटल रिटार्डेशन के अंदर लेके आना शुरू कर देते हैं। मेंटल रिटार्डेशन को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सवेयर के अंदर, और जो 130 से अबव जा रहे हैं वो हाई आईक्यू के लोग हैं, ठीक है, जो जीनियस जिनको कहा जाता है, ठीक है। सो वो लोग हैं। सो ओनली पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड ओनली 5% ऑफ द पीपल आर जीनियस, 95% आर नॉर्मल पीपल, एवरेज आईक्यू है उनका, ठीक है। और ओनली 5% आर दोज हु आर मेंटली रिटार्डेड, ठीक है, और देयर आईक्यू इज लेस देन 70, ठीक है। सो दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये है कि आईक्यू स्कोर्स जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन अ फॉर्म ऑफ अ बेल शेप्ड कर्व, जो आपको बेल शेप्ड कर्व नजर आ रहा है। नंबर टू, average IQ of the population is 100, and the rest of the IQ is dispersed and scattered around this 100. Some people would have IQ above 100 and some people will have IQ below 100. So third, 95% of the population, the IQ lies between 70 to 130. तो जब आपसे पूछा जाए कि रेंज क्या है नॉर्मल IQ की, तो आपने ये कहना है कि जी 95% of the people
lie between 70 to 130. बाकी 5% में से 2.5 is above 11 130 बजने and लगे हैं, 11:52। 2.5 is below 70. Okay. Okay. So aptitude versus achievement test. Aptitude test कौन से होते हैं? Which predict a person's future performance. ठीक है. फ्यूचर परफॉर्मेंस जो प्रिडिक्ट करते हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने सैट का नाम सुना हो, एसएटी जो लोग देते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले, दैट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट. उसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं एंड मोर और लेस अचीवमेंट भी कहा जा सकता है, लेकिन इट इज मोर ऑफ एन एप्टीट्यूड. हमें देखना चाह रहे होते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि इस बंदे ने जो सैट के अंदर स्कोर किया है वो हमें बताता है कि वेदर ही और शी इज कैपेबल ऑफ गेटिंग एन एडमिशन इन आवर यूनिवर्सिटी और नॉट. ठीक है. इस तरह से जीआरई का नाम सुना होगा. जीआरई जो है वो भी एक टेस्ट है कि जो पाकिस्तान में भी होता है, और ये अगर आप एमफिल कर रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, तो पीएचडी में अप्लाई करने से पहले यू नीड टू डू अ जीआरई. जीआरई अगेन tells the university that this particular person has an aptitude and a capacity to learn and he will do good in future. ठीक है, तो ये इस काबिल है कि ये पीएचडी कर सके, तो इसलिए उसको एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं. अचीवमेंट टेस्ट वो हैं which is designed to assess what a person has already learned. तो जो आपके एग्जाम्स हो रहे होते हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है, इवन जो एम कैट है, एम कैट इज बोथ ऑफ एन एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट टेस्ट. ठीक है, बेसिकली अगर आप पूरा सेटअप देखें, इसका पूरा फॉर्मेट देखें, तो इट इज मोर ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट. लेकिन साथ साथ अगर इसके अंदर आप एनालिटिकल भी डाल देते हैं, आप इसके अंदर वोकेबलरी भी डाल देते हैं, आप इसके अंदर अदर और चीज़ें भी डाल देते हैं, ठीक है, तो फिर ये एप्टीट्यूड टेस्ट भी बन जाता है. ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट हैं कि जो नॉर्मली आप देखते हैं कि ये होते हैं, जो हम क्या करते हैं, और ये बेसिकली दे आर ऑल बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस. ठीक है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस स्कोर्स क्या है? प्लीज टेक अ पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड. हम अब रेंज बता देते हैं. वैसे तो हम 70 to 130 का बता चुके हैं, लेकिन अगर फर्दर आप इसको सब डिवाइड कर दें तो 130 एंड अबव को हम वेरी सुपीरियर कहते हैं. 120 to 129 is superior. 110 to 119 is high average. 90 to 109 is average. 80 to 89 is low average. 70 to 79 is borderline. और जब आप 70 से नीचे जाते हैं तो mental retardation है, but again mental retardation is also divided into mild, moderate and severe. तो अगर किसी का 69 है या किसी का 65 है, that doesn't mean that that person is totally mentally retarded. हो सकता है कि वो कुछ मेजर चीज़ों के अंदर वो उसकी एबिलिटी ना हो, लेकिन बाकी वो नॉर्मल रूटीन के लाइफ अपने काम कर सकता हो. ठीक है. So this is a distribution of intelligence score. Now let's have a look at the extremes of intelligence. Do you know what is the IQ score of Sylvester Stallone? या सामने आपकी पिक्चर नजर आ रही है. सिल्वेस्टर स्टैलोन की पिक्चर नजर आ रही है आपको. क्या है इसका IQ स्कोर था? Any guesses? बिल गेट्स का क्या IQ स्कोर है? जी, बिल गेट्स का क्या IQ स्कोर है? Hello, anyone there? No idea. 90 plus. Okay. 160. Okay, so Bill Gates का IQ score is 180. And Sylvester Stallone जो आपके सामने जिसकी पिक्चर है, that he has an IQ score of 160. Okay, और ये जो है, this is a picture of Down syndrome. Those who are mentally retarded. So group preferences and intelligence test score में अगर आप देखें, so again culture has an effect on the intelligence test scores. Bell curve जो आपने देखा, that is different from whites versus black. And it is known through researches that math scores are different across genders. अगर आप genders की बात करते हैं तो males have the highest score of maths than females, and again which males? Asian males. अगर आप whites की बात करते हैं, आप Africans की बात करते हैं, तो उनका भी maths का score इतना अच्छा नहीं होता जितना कि Asian males का होता है. अब इसकी reason क्या है? Is there something to do with the inheritance or it is the environment? So it is in the nature or the brought up or the nurture. क्या ख्याल है? Inheritance की वजह से IQ scores पे effect होता है या आपके environment की वजह से होता है? Any guesses?
Environment, mainly environment. There's no role of inheritance or hereditary. It's people say this guy's parents are highly intelligent, so he must be also a high achiever. Is it true? Both. Okay. Okay, so there are two types of factors, biological and second is socio-environmental. So both have an effect on the intelligence scores. Biological में आप देखते हैं inheritance में. Inheritance की भी बात है, inheritance के अंदर भी ये चीज़ है, लेकिन again it's not a huge impact of inheritance. ठीक है, there's a minute impact of inheritance too. Okay, nutrition in early life, in childhood, it starts from the right from the प्रीनेटल पार्ट, इंट्रायूट्राइन. इंट्रायूट्राइन जब बच्चा होता है तो उसकी माँ क्या खा रही है, उसके बाद इन्फेंसी में, उसके बाद उसके चाइल्डहुड में जो उसकी न्यूट्रिशन उसको मिल रही है उसका अफेक्ट उसकी ब्रेन डेवलपमेंट पे हो रहा होता है, एंड फर्दर दैट इज गोइंग टू अफेक्ट हिज और हर IQ. ठीक है. लेड पोल्यूशन जो है, जो लोग लेड पोल्यूशन जब बच्चे हैं या वो अफेक्ट होते हैं लेड पोल्यूशन के साथ एक्सपोज होते हैं, ठीक है, अगेन दे हैव एन IQ एंड इंटेलिजेंस डेफिसिट उनके अंदर आता है, और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर वो उससे एक्सपोज होते हैं. अल्कोहल, इफ अ मदर टेक्स अल्कोहल ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, तो हमें पता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है कि जो बच्चा जो पैदा होता है वो ऑलरेडी मेंटली रिटार्डेड हो सकता है. पेरीनेटल फैक्टर्स जो हैं, जो अगेन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड ब्रॉट अप, जो जो न्यूट्रिशन आ रही होती है, ठीक है, वो बच्चे को अफेक्ट करती है. ठीक है. उसके बाद जो एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्यूपेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. सो ऑक्यूपेशन, इफ अगर आप किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा माइंड प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, ठीक है, so it is possible that by rehearsing and doing things again and again, you can improve that ability of yours. ठीक है. सो आप जब एक चीज़ को बार बार करते हैं और माइंड को उसके साथ ट्रेन कर लेते हैं तो आपकी वो पर्टिकुलर एबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है. तो इसलिए इन्वायरमेंट का रोल है. Schooling, again, if a child goes to school and the other child doesn't go to school, so जो स्कूल का environment है वो उसका एक बहुत strong impact है. किसी को आप घर की schooling कराएं या घर में बिठा लें और बिल्कुल ना एक environment से expose करें, और किसी को अगर आप स्कूल भेजते हैं तो उसकी और दोनों का जो एक brought up है और उसका जो mental capability है उसमें affect होगा. And then comes the family environment. If there's a happy family, there's a harmony in the family, there are parents, there are siblings, और एक अच्छी एक close knitted family है, तो उसका again उसकी intelligence पे और cognitive ability पे impact है. Whereas if there's a separated family, disturbed family, ठीक है, तो वहाँ पे cognitive deficit हो सकता है. I know time हो गया, don't worry. मैं अभी आपकी क्लास खत्म कर दूंगी. ठीक है जी. So remember that never confuse education with intelligence. अगर किसी के पास education है, बहुत ज़्यादा degrees हैं, तो that doesn't mean that that person is intelligent too. That's all for today. Thank you so much. If you have any questions, you can ask in the even now, or you can ask in the next lecture. Any questions? Any questions? Class? Okay. Thank you so much. Take care. Khuda Hafiz.